Hello everyone and welcome to the final module of the Rahat project. इस पूरे प्रोग्राम में we've delved into the journey of our mental health. हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हम कैसे सेल्फ केयर और सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ा सकते हैं. चलिए लेट्स टेक अ मोमेंट और अपने आप को कंग्रेचुलेट करें. Please be very proud of yourself for taking this step and embarking upon this journey with us. पिछले 7 मॉड्यूल्स में कई ऐसी मोमेंट्स आए होंगे which might have forced you to take a step back and take a minute, and that's completely all right. याद रखिए, अच्छी mental health एक जर्नी है and you are already working towards improving your well-being. इस मॉड्यूल में हम कुछ की एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमने मॉड्यूल्स में सीखे हैं so that we may walk into tomorrow as more self-assured and knowledgeable people. Are you ready? Let's go. Yeah, there we initially started with understanding hum kaun hai or who we are. We thought about how to position and locate ourselves in this world. हो सकता है आप पर बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो या शायद कम्युनिटी के अंदर से भी to put a label on yourself. But as we discussed, gender और sexuality एक spectrum है and you can lie anywhere on that spectrum. आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आपकी खुद की चॉइस है एंड यू टेक एज मच टाइम एज यू वांट टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ. हमने सेल्फ हेट के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किए थे. एक क्वेयर व्यक्ति के तौर पर साउथ एशिया या ग्लोबली भी हमें शेम और हेट्रेड का सामना करना पड़ता है. इट्स वेरी इजी टू इंटरनलाइज दिस हेट एंड रिजेक्ट हु यू आर. इन फैक्ट वी आर टॉट टू हेट आवरसेल्व्स और ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है. Absolutely, yeah. Therefore, it's very important to understand who you are. As queer folk, अपनी sexual orientation and gender identity को समझना एक ज़रूरी और अहम हिस्सा है of who we are. It informs and impacts हमारा interaction ना सिर्फ अपने आप से but बाहरी दुनिया से भी. बहुत लोगों को बचपन में ही अपनी gender और sexuality का एहसास हो जाता है. For some, they realize and accept and understand their identity in their teen years. Remember, you come from a vibrant history of queer expression before colonialism. So आप बिल्कुल भी hate और prejudice को internalize ना करें, जो society में queer community को मिलता है. There's still a long road ahead for full acceptance. However, we should try not to self-hate. एक community के तौर पर हमें challenges face करने होते हैं, which can lead to feelings of loneliness, inferiority, self-stigma, and even self-blame. Also, the bullying, harassment, or discrimination we face has a huge impact on LGBTQIA++ youth and their mental health. Research ने दावा किया है कि most queer people, both young and older, को कोई mental health challenges such as depression, anxiety, and stress dissonance होता है. We are more than twice as likely as heterosexual adults to experience a mental health condition. और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने की खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है, एज वी हैड डिस्कस्ड. इसीलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखने की ज़रूरत है. Are you ready? Let's go. Yeah, there we initially started with understanding हम कौन हैं or who we are. We thought about how to position and locate ourselves in this world. हो सकता है आप पर बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो या शायद कम्युनिटी के अंदर से भी to put a label on yourself. But as we discussed, gender और sexuality एक spectrum है and you can lie anywhere on that spectrum. आपकी self identification आपकी खुद की choice है and you take as much time as you want to identify yourself. हमने self hate के concept को भी डिस्कस किए थे. एक क्वेयर व्यक्ति के तौर पर साउथ एशिया या ग्लोबली भी हमें शेम और हेट्रेड का सामना करना पड़ता है. इट्स वेरी इजी टू इंटरनलाइज दिस हेट एंड रिजेक्ट हु यू आर. इन फैक्ट वी आर टॉट टू हेट आवरसेल्व्स और ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है. Absolutely, yeah. Therefore, it's very important to understand who you are. As queer folk, अपनी sexual orientation and gender identity को समझना एक ज़रूरी और अहम हिस्सा है of who we are. It informs and impacts हमारा interaction ना सिर्फ अपने आप से but बाहरी दुनिया से भी. बहुत लोगों को बचपन में ही अपनी gender और sexuality का एहसास हो जाता है. For some, they realize and accept and understand their identity in their teen years. Remember, you come from a vibrant history of queer expression before colonialism.
सो आप बिल्कुल भी हेट और प्रेजुडिस को इंटरनलाइज ना करें जो सोसाइटी में क्वियर कम्युनिटी को मिलता है. There's still a long road ahead for full acceptance. However, we should try not to self-hate. एक कम्युनिटी के तौर पर हमें challenges face करने होते हैं which can lead to feelings of loneliness, inferiority, self-stigma and even self-blame. Also, the bullying, harassment or discrimination we face has a huge impact on LGBTQIA++ youth and their mental health. Research ने दावा किया है कि most queer people, both young and older, को कोई mental health challenges such as depression, anxiety and stress dissonance होता है. We are more than twice as likely as heterosexual adults to experience a mental health condition. और transgender community में mental health issues face करने की खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है, as we had discussed. इसीलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखने की ज़रूरत है. मेंटल हेल्थ का हमारी वेलबींग पर बहुत असर होता है. ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी मेंटल हेल्थ हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर फिजिकल हेल्थ, और इसीलिए जब भी मेंटल हेल्थ हेल्प की ज़रूरत हो तो मांगने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. एक अच्छी मेंटल हेल्थ होने का मतलब है कि आप इमोशन से डील कर सकते हैं, एम्प्टी नहीं फील कर रहे हैं, आप में सेल्फ हार्म टेंडेंसीज नहीं है. इट ऑल्सो मीन्स लाइकिंग, यानी कि अपने आप को पसंद करना, एक्सेप्ट करना और खुले मन से चूज करना हाउ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन योर लाइफ. रिमेंबर द टिप्स फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. लेट्स गो ओवर देम क्विकली. टिप नंबर 1, अच्छी नींद लेना. टिप नंबर 2, एक अच्छा और हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट का होना. टिप नंबर 3, एक्सरसाइज करना. टिप 4, finding something that relaxes you and making it a part of your routine. Tip number 5, being mindful of what you say to yourself. One way to implement and maintain good mental health is through self-care. Self-care मतलब accept करना who you are, खुद को value करना, खुद से kind रहना, खुद को appreciate करना, खुद को time देना और खुद को रोजाना कुछ वक्त के लिए priority पर रखना. It is quite simply saying, I matter, I deserve time, effort and care. आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि different people do self-care differently. From seeking therapy to going on a walk, whatever works for you is self-care. इस बात को acknowledge करना भी ज़रूरी है कि mental health आपके queer होने से भी related है. Remember, सबके lived experiences और अनुभव different होते हैं and everyone has a different idea of what a good life, good mental health and self-care looks like. ये सोचिए कि आपके लिए ये क्या मायने रखता है and don't let others tell you what your journey should look like. Next, आपको याद होगा कि we discussed anxiety. So what is it? ये आपकी बॉडी का स्ट्रेस की तरफ एक नेचुरल रिएक्शन है. इट्स वेरी कॉमन अमंग LGBTQIA+ इंडिविजुअल्स. जब हम एंग्शियस होते हैं तब अलग अलग अनकंफर्टेबल फिजिकल सेंसेशंस को भी फील करते हैं. ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि एंग्जाइटी और वरी 2 अलग अलग चीज़ें हैं. वरी मेक्स यू यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू एड्रेस योर कंसर्न्स. एंग्जाइटी इज परसिस्टेंट इवन जब कंसर्न्स अनरियलिस्टिक हो और इफ़ यू हैव नो कंट्रोल ओवर देम. It often compromises your ability to function. अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको एंग्शियस करती है, इसके बारे में सोचिए. पहले अपनी प्रॉब्लम को लिखिए and then understand your anxiety. The what if question is best solved when written down. Now ask yourself, क्या ये एक रियल इशू है? Can you do something about it? If not, तो एंग्शियस होने का क्या फ़ायदा? If you can do anything to help the situation, act on it. हम एंग्जाइटी से कैसे कोप करें? क्या आपको वो ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग और जर्नलिंग एक्सरसाइजेज याद हैं which we had learnt earlier? आप उन्हें करते रहिए and figure out what helps you feel calm and उसे अपने रूटीन में शामिल करें. आपको हमारा डिप्रेशन पे डिस्कशन याद है? डिप्रेशन सिर्फ आपके मूड्स को अफेक्ट नहीं करता. डिप्रेशन उस पर भी असर डाल सकता है कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं और हम स्कूल में कैसे परफॉर्म करते रहे. It can affect your energy, your sleep and your eating as well. It affects how you think and feel about yourself.
जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं अक्सर अकेलापन फील करते हैं. They may feel bad about themselves. For the LGBTQIA++ community, depression, discrimination, stigma और बचपन से ही टारगेट किए जाने का रिजल्ट है. दुनिया हमें शुरू से बताती है कि we don't fit in, we don't belong या हम गलत हैं. हमें ये समझना है कि this can happen to us and हमें इसके लिए prepared होना चाहिए. तो डिप्रेशन से कैसे कोप करें? डिप्रेशन से डील करने का सबसे आसान तरीका है टू स्टार्ट स्मॉल. धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें. पहला कदम और कोशिश सबसे मुश्किल होती है, बट इट कैन हेल्प यू फील बेटर सब्सटैंशियली. टिप नंबर 1, रीच आउट फॉर हेल्प एंड स्टे कनेक्टेड. कभी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए. डिप्रेशन आम होता है. डोंट स्टिग्मेटाइज योरसेल्फ. डिप्रेशन इज कॉमन एंड मैनेजेबल. टिप नंबर 2, अपना ध्यान रखिए. Do things that make you feel good. Sometimes आपका मन नहीं करेगा कि आपको कुछ भी करना है, लेकिन you need to push yourself because it's important to feel better. Tip number 3, अपने physical well-being का ध्यान रखें. Get enough exercise and sleep and nutrition. Connect with people who care about you. Tip number 4, धूप आने दो. Get some sunlight. Research shows that sunlight boosts serotonin in the body. Tip 5, challenge those negative emotions. बुरे ख्यालों को खुल के चैलेंज करें. याद रखिए, कमिंग आउट इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन योर लाइफ. कमिंग आउट एक प्रोसेस है जिसमें लोग अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन लेट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स नो अबाउट देमसेल्व्स. मगर ये चूज़ करना कि कम आउट करना है या कब करना है और कैसे करना है इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस एंड नो वन शुड बी पुश्ड इनटू दिस चॉइस. ये प्रोसेस हर इंसान के लिए अलग हो सकता है. फॉर सम इट कैन बी एन एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स देम टू स्टेप फुली इनटू देयर आइडेंटिटी. फॉर अदर्स इट मे बी स्ट्रेसफुल टू navigate the conversation with their loved ones. Often we get anxious about how people might react when you tell them. When coming out, you should be ready to talk about your identity, and often we're not. ये ज़रूरी है कि आपके पास एक सेफ्टी और बैकअप प्लान हो in case something goes wrong. ये याद रखें कि दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी फेल्ट बाय यू. सो बी श्योर टू असेस एंड कम आउट व्हेन यू आर रेडी, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट. योर सेफ्टी एंड वेल-बीइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर. जब आप ऐसी सिचुएशन में हो वेयर इट्स पॉसिबल फॉर यू टू बी अटैक्ड फॉर बीइंग हु यू आर, द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, repercussions that a person's job or health care may be taken away, coming out आपका ऑप्शन नहीं है. It is important to remember that coming out आपका गोल नहीं है. आपका गोल है कि आपको जीवन में बैलेंस मिले ताकि we as queer people can live happy and healthy lives. Take time to work out what is best for you. हमेशा self care practice करें to help ground yourself and put your situation and thoughts in order. इन एन आइडियल वर्ल्ड सोसाइटी सबको एक्सेप्ट करती है, चाहे जो भी उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी हो. सैडली हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं. क्वेयर इंडिविजुअल्स को स्टिग्मा, रिजेक्शन, होमोफोबिया और दूसरे नेगेटिव इमोशंस का सामना करना पड़ता है फ्रॉम सम रिलेशनशिप्स दे आर इन. इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग जब आपकी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर पियर्स, पार्टनर्स और दूसरी रिलेशनशिप्स आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं just because of your queerness. इसलिए as a queer individual बहुत important है to form healthy relationships in your life. याद रखिए, the most important relationship you have is with yourself. खुद से प्यार करना self-indulgent नहीं है. It doesn't mean you stop caring about others. It just means adding yourself to your inner circle of loved ones. Self-love खुद से ये कहना है कि you matter, your feelings and needs matter and you should come first. ये पूरे जीवन के सबसे important acts of kindness है जो आप करेंगे. अपने से प्रेम, सद्भावना करें. Also be happy with who you are. हो सकता है कि कम्युनिटी में लोग आपको लेबल करें या बॉडी शेम करें. People often refer to others as femme, camp, fat. ये सब derogatory या अपमानजनक लेबल्स हैं
और ये दुख की बात है that we in this community do this to each other. ये गलत है. If we want those outside the community to accept us, how can we not accept ourselves? Don't let anyone label or shame you. Don't stigmatize yourself either. अच्छा, वो एक्सरसाइज याद है जो हमने सेल्फ हेट से डील करने के लिए करी थी? प्रैक्टिस सेइंग थिंग्स टू योरसेल्फ दैट यू अप्रिशिएट अबाउट योरसेल्फ और टेक अ मिनट एवरी डे जस्ट टू से काइंड थिंग्स टू योरसेल्फ. अपने बारे में अच्छी बातें खुद से कहिए, अपनी सोच, प्रेम और बिहेवियर के बारे में. खुद को, अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करें. रिमेंबर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते जब तक यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ. अपने लिए एक मेंटल हेल्थ केयर प्लान बनाकर अपने माइंड और इमोशंस का ख्याल रखना सीखिए. अगर आपके पास अभी एक अच्छी मेंटल हेल्थ केयर प्लान नहीं है तो टाइम आ गया है कि आप उसे बनाएं. अब मेंटल हेल्थ वेलनेस प्लान आपकी मदद करेगा टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट डज एंड डज नॉट वर्क फॉर यू इन मेंटेनिंग अ गुड मेंटल हेल्थ. वैसे ही जैसे यू क्रिएट अ गाइड और अ रेजिमेन टू रिमेंबर व्हाट यू नीड टू डू ईच डे, ये आपको कोपिंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करेगा, which you can utilize to ensure कि आपका एक अच्छा बैलेंस बना रहे between your thoughts, emotions and behaviors. इस तरह आप अपने बारे में और जानेंगे and you'll become more comfortable with who you are. You can link your mental health to your physical health. Mindfulness को physical movement के साथ combine करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है to tackle both aspects of your health. माइंडफुल वॉकिंग एक अच्छा तरीका है ये करने का. जब आप अपना मेंटल हेल्थ प्लान बनाते हैं तो लिखिए कि आपके गोल्स और आपके चैलेंजेस क्या हैं एंड हाउ यू वांट टू डील विद देम. याद रखिए कि आपकी मेंटल हेल्थ प्लान एक जैसी नहीं रहती और बदलती रहती है. इट कैन चेंज ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. सो हियर्स अ सजेस्टेड ब्लूप्रिंट दैट यू कैन फॉलो. व्हाट आर माय गोल्स? व्हाट आर माय ऑब्स्टिकल्स? What are my strengths? Who can I call when I need help? And what is my self-care plan? Remember that सबका mental health plan अलग होता है. इस सफ़र में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कोशिश करते रहना. हो सकता है कि that your plans may not work and you may not immediately see a difference, but mental health is a journey. It's a marathon, not a sprint. And congratulations, आपने सारे modules cover कर लिए. You've covered all the modules. Take this moment to sit back and reflect on everything that you've learned. आप self care की definition को अपनी life में apply कीजिए. This is your first step on the journey to enhancing your self care capabilities. We're very proud of you and we hope that you're going to maintain taking care of your well-being. And for more mental health information, keep checking the Rahat Project.